Just tell me what is the effect of temperature. Suppose you have to increase the temperature of the conductor, then what is the effect in the resistance of this conductor? Just tell me. Sir, resistance of a conductor is directly proportional to the change in temperature. So that means, sir, if we increase the temperature, resistance will also increase. Okay, so how the resistance increases? How when you just increase the temperature, then what will happen inside the conductor that will increase the resistance? Sorry, sir, no idea. Anyone idea? Anyone student? Sir, resistivity depends on the nature of the material used. Okay, then So see means here. Tell me. Okay. See here. Suppose this is the conductor. This is the supposed conductor. See here. Actually, today is the first class, na. So first you learn the basic concept of resistance, current, voltage. Then you have convert this is the syllabus. Okay. And और मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ कि थोड़ा पढ़ाई में जो होगा सिंसियरिटी करना होगा और अटेंडेंस, जहां तक बात है कि प्रेजेंस का, थोड़ा क्लास को रेगुलर करना. So you know that any conductors or any materials that is the mass of atoms, you know that any conductors, anything that is the mass of made of atom. On atoms is the three fundamental particles, that is electron, protons, and neutrons. You know that this is the basic. Okay. Suppose you have just increased the temperature. We just increase the temperature. Then what will happen here? You know that suppose you just increase the temperature, then kinetic energy also increases. Kinetic energy, you know that is the velocity, motion. So when we just increase the temperature, then kinetic energy, that is the kinetic energy inside these atoms increases, means vibration is increases. They are colliding with each other. So you know that resistance means what? Oppositions offered to the flow of current. Opposition offered to the flow of current. This is the basic thing of what? Simple resistance. So when we increase the temperature of this conductor, then the vibration and collision of these atoms inside this increases. So when increases, then what will happen? जब यहाँ पर टेम्परेचर हम लोग का बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी मोशन होगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ से हम लोगों का करंट जो फ्लो होगा उसके लिए रास्ता हम लोगों को कम मिलना शुरू होगा. हम लोग का जो करंट फ्लो करेगा, ये करंट जहां से हम लोग का फ्लो करेगा, तो वहां से हम लोग को क्या होगा, पाथ हम लोग का करंट के लिए क्या होगा, अपोज करना ज्यादा शुरू करेगा. और करंट को अपोज करने का मतलब ही हम लोग समझ सकते हैं क्या, कि रेजिस्टेंस व्हाट विल इंक्रीजेस. रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर विल इंक्रीजेस. So this is the basic concept behind what will happen when we just increase the temperature. Then kinetic energy of these atoms and this inside atoms, means electron, proton, neutrons, you know that. So atoms are colliding with each other. So a speed means velocity, means motion, means kinetic energy increases. Or kinetic energy increases means that the current, the path of current, the current flow करने का रास्ता है, उसके लिए रास्ता कम मिलेगा, करंट को अपोज करना शुरू करेगा. So that's why the resistance of the what conductor increases. So this is the basic. Okay. So okay, I think that all of you got my point. This is the basic thing. Everyone clear है कि नहीं? Clear है ये चीज? So okay. So अभी यदि मैं बात करता हूँ, यहाँ पर हम वोल्टेज एंड करंट सोर्स का बात कर रहे हैं, तो just tell me one of the important terms in the electrical engineering, that is what is EMF? What is EMF? So मिलन सागर, क्या आप बता सकते हैं कि EMF क्या है? What is EMF? Just tell what is the EMF? Just tell what is EMF? आज बहुत ही बेसिक क्लास है और इसीलिए मैं आप लोग से जानना चाहूंगा. तो EMF, हाँ. your sound is not clear. Just wait 1 minute.
And some network problem. Okay, tell me. Audible? My sound is audible? Anyone? Aman? तो कोई भी बता सकते हो, देखिए पढ़ाई करना है बाबू। तो ऐसा नहीं है कि बस संकोच कर रहे हैं, मन में हम कुछ रख रहे हैं, हम नहीं पढ़ नहीं जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जानना नहीं है तो सीखना है भाई, सीखना है, बस सीखने के लिए तो पढ़ा रहे हैं। हम थोड़े ना ये पूछ रहे हैं कि अरे नहीं जानते हो तो हाँ मिला इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ठीक सर है वो। सर इट इज अ पोटेंशियल सर इट इज अ हाँ। पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points when there is no current flowing. Okay, anyone? What is electromotive force? So it's a electromotive force. ठीक है, हम तो बोल रहे हैं कि दिस इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ मींस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आई एक्चुअली में हाँ 3 वोल्टेज का स्मॉल अमाउंट जहाँ यूज मतलब स्मॉल अमाउंट को मेजर करने के लिए 3 ईएमएफ बोलते हैं। नहीं, हमको जवाब सही नहीं मिला अब तक। ईएमएफ जैसे हम लोग बोल रहे हैं फोर्स, ठीक है, इसका यूनिट हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, वोल्ट होता है ना, वोल्ट होता है ना। लेकिन हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो कोई भी बोलेगा भाई ये तो सर फोर्स है तो इसका यूनिट न्यूटन होना चाहिए। तो हम लोग इसका जो फोर्स बोल रहे हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एंड व्हाट इज दिस बेसिक मीनिंग ऑफ दिस ईएमएफ? Sir, it separates the charge and current flowing in a closed circuit. सिंपली ईएमएफ मींस सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोगों को जो कंडक्टर का यदि हम लोग बात करते हैं, करंट को फ्लो करने में जो हेल्प करे, करंट को जो फ्लो कराता है, हम लोग का जो करंट सिंपल, हम लोग को सिंपल हिंदी लैंग्वेज में हम लोग बताते समझे, मतलब सिंपल इसको बोलो को पुश कर रहा है, धक्का दे, हम लोग जो करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है, सिंपल हम लोग को जो ये धक्का दे रहा है, तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस, दो पॉइंट के बीच में जो कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस बात करते हैं कि नहीं, यू नो दैट पोटेंशियल डिफरेंस, सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस। जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, सब कॉन्सेप्ट जानते हो ना, करंट कैसे फ्लो करता है। हम लोग जो पोटेंशियल डिफरेंस है जिसके कारण हम लोग का जो करंट फ्लो हो रहा है कोई भी दो कंडक्टर के बीच में, तो ये जो हम लोग करंट को जो फ्लो करने में जो हम लोग को मदद कर रहा है, जो करंट को फ्लो करा रहा है, तो ये जो फोर्स जो हम लोग का बात करते हैं, दैट इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सिंपली जो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस का जो बात करते हैं, सिंपली जो हम लोग क्या बात करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मींस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज सिंपली द फोर्स दैट सिंपली व्हाट help to flow the current in the करंट को हम लोग को धक्का देने का काम करता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बेसिक कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो देखो बाबू, तुम लोग छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इस सब टर्म को जानना बहुत जरूरी है। और एक्चुअली मेरा सर्किट फंडामेंटल है, जो तुम लोग का सब्जेक्ट है, दिस इज द वेरी बेसिक सब्जेक्ट, और हम लोग अभी वन बाय वन करके एक एक चीज को समझते हुए जाए। सो ओके, सो दिस इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो जस्ट टेल मी व्हाट इज केसीएल एंड व्हाट इज केवीएल। अब जैसे कि बहुत सारे थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे, then what is the importance of KCL, what is the advantage disadvantage of KCL KVL, and where this is applicable or not applicable, and suppose new theorems, Thevenin theorem, Norton theorem, superposition theorem. So different theorem in this syllabus, in this subject you have just studied about different types of theorem. So कौन सा थ्योरम कहाँ पर एप्लीकेबल होगा, कौन सा थ्योरम में क्या डिमेरिट्स है, क्या डिसएडवांटेजेस है, सो वन बाय वन करके हम लोग इसको डिस्कशन करते हुए जाएंगे। तो KCL एंड KVL दिस इज द वेरी बेसिक +2 लेवल का है, और फर्स्ट ईयर में सारे पढ़ चुके हो। सो एनीवन जस्ट टेल मी व्हाट इज KCL एंड व्हाट इज KVL, जस्ट टेल मी व्हाट इज KCL एंड व्हाट इज KVL, टेल मी। Sir, total incoming current of any junction is equal to total outgoing current is called KCL. Okay, very good. It is applicable for current. So मैं आप लोगों को एक होमवर्क देना चाहूंगा, just you write in your copy. So where this KCL KVL is applicable, what is the disadvantage of KCL and KVL? Just write this question.
What is the disadvantages of, what is the limitation? Just tell me what are the limitations of KCL and KVL. So write down one question. What is the limitations of this KCL and KVL? Write down this question in your copy. KCL and KVL. You just search book like that. Okay. So what is the limitations of KCL and KVL? मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा, don't worry. लेकिन आप लोग कुछ होमवर्क मिलते रहने से थोड़ा अच्छा रहेगा. So देखा आप लोगों ने जो बेसिक में आप लोगों को बताया. So one of the basic important again. So KCL, KVL, okay. One who just Mamta, you are right. Mamta, na? Okay. Okay. So what is the KVL? Puneet, what is KVL? Yes, sir. What is KVL? Sir, according to Kirchhoff's second law, the sum of the product of electric current and resistance is equal to sum of all EMF present in the closed loop. Okay, this is also correct. Okay. तो come to the syllabus. पहले syllabus को हम लोग जान लेते हैं क्या है. तो देखिए syllabus में हम लोगों ने बात किया कि voltage source, current source, ये conversion of voltage source to current source. Conversion मतलब आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि suppose that हम लोग के पास voltage source है तो उसको current source बनाना है, या current source है तो उसको हम लोग को voltage source में convert करना है. Then what is the basic approach to just conversion of voltage source and current source? Basic approach, okay. And voltage division rule, current division, ये सब आप लोग को पता होगा, बेसिक है. नहीं भी पता होगा तो डोंट वरी, आई विल जस्ट वन बाय वन करके आप लोगों को क्लियर करूंगा. वोल्टेज डिवीजन और करंट डिवीजन रूल्स. लेकिन मैं आप लोग को जस्ट एक चीज कहना चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा फंडामेंटली थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा. सो हियर नेटवर्क टर्मिनोलॉजी अभी एक्चुअल में, हाँ टेल मी. सर आपका आवाज कट रहा है सर. थोड़ा सा नेटवर्क इशू है एक्चुअली. जो प्रॉब्लम है तो एक मिनट, 1 मिनट, जस्ट मिनट. थोड़ा सा जो है ना नेटवर्क का इशू है तो वो सॉल्व हो जाएगा. आज मैंने एयरटेल का सिम ले लिया हूँ. सो ओके, अभी क्लियर आ रही है क्या आप लोग? यस सर. सो ओके. सो नेटवर्क टर्मिनोलॉजी में नोड क्या है, जंक्शन क्या है, इस सब चीज के बारे में आप लोग बताऊंगा. नेटवर्क मतलब समझ रहे, नेटवर्क सिंबल मान लेते हैं कोई सर्किट है, आपका देख सकते हैं ये सर्किट है, ये आपका वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है. इसमें जो हम लोग का टर्मिनोलॉजी का बात करेंगे, जैसे रेजिस्टेंस है, ये आपका बैटरी है, तो नोड, उसको हम लोग नोड कहते हैं, उसको हम लोग लूप कहते हैं, हम लोग मेश कहते हैं. तो ये सब चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. नेटवर्क क्या है, अब उसका हम लोग नेटवर्क में जैसे हम लोग बात करते हैं कि डिफरेंट करंट फ्लो करता है. मान लेते हैं यहाँ से I1 जा रहा है, इधर I2 जा रहा है, इधर I3 जा रहा है, ये रेजिस्टेंस R1 R2 है. तो हम लोग को जो निकालना पड़ेगा, तो आप लोग पढ़े होंगे KCL KVL लगा करके आप लोग इसको निकालते हैं. लेकिन हम लोग अब डिफरेंट मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं. सो लूप, व्हाट इज मेश करंट मेथड, नोड वोल्टेज मेथड क्या है, मेश करंट मेथड क्या है, स्टार डेल्टा कनेक्शन. जैसे कि आप लोग अभी तक जो पढ़े हैं, यू नो दैट द बेसिक सर्किट कनेक्शन, दैट इज द सीरीज एंड पैरेलल. सीरीज और पैरेलल कनेक्शंस के बारे में आप लोग बेसिक जानते हैं. यू नो द वेरी बेसिक ऑफ सीरीज एंड पैरेलल, ओके. बट आल्सो यू हैव टू सॉल्व सपोज सम कॉम्प्लेक्स सर्किट like a star and delta. So star and delta, one of the conversion. So that's you by using, you can also you find out the equivalent resistance or also capacitance of that network. So star delta. So how to convert a star to delta and delta to star. So this is the one of the important topic in your syllabus. Then I can see here node, mesh analysis, matrix approach, network containing voltage and current sources, a reactance, source transformation, and duality, network theorem, superposition. This is very important. Network theorem, this topic is very important. Network theorem. So yes, superposition, reciprocity theorem, Thevenin, Norton, maximum power transfer, and compensations and Talzin's theorem. See here, applied to AC circuit. See here, this is for AC circuit, not for a DC circuit. AC circuit, okay.
trigonometric exponential, Fourier series, spectra and symmetry of waveform, and Fourier transforms and spectra, phase and balance circuit, power calculation. So देख सकते हैं आप लोग ये सब जो छोटा छोटा टॉपिक है, ये सब सारा चीज आप लोग को क्लियर होगा। और नीचे में यदि हम लोग जाएंगे रिजोनेंस के बारे में जब पढ़ेंगे, तो रिजोनेंस का बेसिक आप लोग इम्पीडेंस इस सब के बारे में जो पढ़े होंगे कुछ सर्किट, इम्पीडेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सब के बारे में आप लोग जो बेसिक फंडामेंटल आप लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। तो यहाँ पर हम लोग कुछ थोड़ा सा अच्छा से और इसमें पढ़ेंगे कि सीरीज रिजोनेंस सर्किट क्या है, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस क्या है, क्यू फैक्टर क्या होता है, बैंडविड्थ क्या है, इन सब के बारे में देख सकते हैं। इन सब के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरेलल सर्किट क्या है, कैपेसिटेंस, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट, ठीक है। हाँ, टू पोर्ट नेटवर्क, ये सब जो है कि आप लोगों के लिए अभी कंप्लीट नया होगा। टू पोर्ट नेटवर्क का यहाँ तक जो है यूनिट 2 तक, मॉड्यूल जो 2 तक देख रहे हैं, इसमें आप लोगों को कुछ ना कुछ आइडिया है। अब जो हम लोग आगे बढ़ेंगे टू पोर्ट नेटवर्क में, तो टू पोर्ट नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए इलेक्ट्रिकल। जो हम लोग बात करेंगे तो पावर सिस्टम से लेकर के हर जगह पर हम लोग का ये जो टू पोर्ट नेटवर्क का बात करेंगे, तो देख रहे हैं टू पोर्ट नेटवर्क ABCD रिलेशन, ट्रांसमिशन लाइंस या पावर सिस्टम में आप जब जाइएगा तो वहां पर भी जो ABCD जो ट्रांसमिशन पैरामीटर का बात करते हैं, ABCD, ये सब कॉन्सेप्ट हम लोग का बहुत ज्यादा यूज होगा। और तो इसीलिए मैं आप लोग को बोलूंगा, बार बार मैं यही कहूंगा, ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी लाइटली इसको नहीं लीजिएगा। इंटर कन्वर्जन ऑफ टू पोर्ट नेटवर्क। अच्छा, आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं? आवाज क्लियर आ रही है ना? ओके, Yes, sir. ओके। क्योंकि देखिए आवाज नहीं आता है तो आप लोग बताइए, जैसे मैं क्लास ले रहा हूँ मैं तो नहीं बता पाऊंगा, आप लोग बताइए हाँ कुछ प्रॉब्लम है। और कुछ भी आप लोग को फीडबैक चाहिए, मतलब फीडबैक देना है कि सर थोड़ा सा ये करा दीजिएगा, थोड़ा सा इस टाइप से थोड़ा सा बता दीजिएगा, तो ऑलवेज यू आर वेलकम टू फॉर फीडबैक, ठीक है। कि सर थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए, थोड़ा ये कुछ बता दीजिए, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा चीज आप लोग को बताया जाएगा। नेटवर्क फंक्शन, देखिए लैपलेस ट्रांसफॉर्म। अच्छा, लैपलेस ट्रांसफॉर्म इस सब के बारे में, ये तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक RL सर्किट जो देख रहे हैं, इनपुट रिस्पांस, आप लोग का जो है नेटवर्क लैब भी है, तो ये बहुत ही मतलब जो होगा कि आप लोग थ्योरी भी पढ़िएगा और जो है कि लैब में भी आप लोग कुछ ना कुछ नेटवर्क जो है कनेक्शन से लेकर और उसका जो है कि प्रैक्टिकल एनालिसिस सीखिएगा। और उसके बाद मैं आप लोग को कुछ सॉफ्टवेयर से भी कुछ कराऊंगा, ठीक है। मैटलैब सॉफ्टवेयर, यदि जिसके पास भी लैपटॉप है तो ऐसे कॉलेज खुल जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लैब में आप लोग तय कीजिएगा। जिसके पास भी लैपटॉप होगा तो मैटलैब से जो होगा सर्किट होगा, सर्किट के लिए स्पाइस जो होता है सॉफ्टवेयर भी होती है, स्पाइस से भी छोटे मोटे सर्किट हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सॉफ्टवेयर में मैटलैब या स्पाइस में कॉन्सेप्ट करना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। फिल्टर्स एंड एट्यूनेटर्स, ये फिल्टर का जब हम लोग बात करेंगे तो ये भी मान के चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिल्टर का क्या इंपॉर्टेंस है, फिल्टर का क्या बैंडविड्थ से लेकर के जो हम लोग फंडामेंटल फिल्टर्स के बारे में जानेंगे। खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट है उन लोगों को तो कहना चाहूंगा, जो फिल्टर्स का जो कॉन्सेप्ट, फिल्टर्स, एट्यूनेटर्स, जो हम लोग बात करेंगे डिफरेंट पास बैंड से लेकर के PI अल्फा, ब्रिज, TL टाइप एट्यूनेटर्स, मतलब खास करके मैं इसी ब्रांच के लिए तो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बोलूंगा। जो ये लास्ट टॉपिक है ये इसी ब्रांच के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं इसी के लिए खासकर ज्यादा इंपॉर्टेंट कहूंगा, तो फोकस करना होगा इस पे, ठीक है। तो देख सकते हैं कि ये आप लोग का 5 टोटल मॉड्यूल है। और यदि बुक का बात करेंगे तो आप जो है कि इसमें जो बुक दिया हुआ है सोनी गुप्ता, ये भी एक इम्पोर्टेंट मतलब आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा बुक है, ये देख सकते हैं। ये देखिए सोनी गुप्ता, AK चक्रवर्ती भी आप पढ़ सकते हैं, थोड़ा थोड़ा उसमें गलती है क्योंकि, लेकिन वही बुक ठीक है, पढ़ने के लिए आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ये। और यदि आप लोग बात कीजिएगा ये बुक, सेकंड नंबर बुक तो बहुत ही अच्छी बुक है, व्हेन व्लैक नेटवर्क एनालिसिस, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको यदि आप लोग इसको भी, पहले मैं कहूंगा कि आप सोनी गुप्ता पढ़िए, चक्रवर्ती पढ़िए, उसके बाद जो है कि ये जो देख रहे हैं सेकंड नंबर बुक, इसको आप लोग प्रेफर करिए, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट डेवलप करना है नेटवर्क पे, तो ये जो बुक आप लोग पढ़ सकते हैं, ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 1, 2, 3 बुक है, लाइब्रेरी में आपको शायद अवेलेबल होगा, क्योंकि मैं अभी तक आप लोग का लाइब्रेरी विजिट नहीं किया हूँ, नहीं है, आप लोग को पता होगा। ये जो है आप लोग का सिलेबस है नेटवर्क का। किसी को थोड़ा भी कुछ डाउट है तो